Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have studied about basic stitching. Then we have studied about doll making, where we have saw how to make a doll with paper. Then we have saw about coconut tree, where we have saw about its uses and about each part of coconut. Then we have saw clay work. In clay work we have saw how to make ornaments with help of clay, and then how to make a tortoise with help of clay. Then we have saw bamboo work and can work, where we have saw uses of bamboo and for what all things we use bamboo and what all things we can make from bamboo. Then we have saw about plantation of flowering plants and ornamental plants, where we have saw about various different types of plants, flowers such as rose, champa, hibiscus, marigold, jasmine, mogra, lily, etc. Then we have segregate flowers with fragrance and flowers without fragrance. Then we have done an activity in agro-based occupation, where we have find out the words with help of the given puzzle. Then we have wrote the names of flowers with same colors, like red color rose, hibiscus, red sunflower, yellow color sunflower, marigold, daffodils, white daisy, champa, mogra, pink periwinkle, lily, orchid. So all these things we have studied in a previous lecture, that was in two part. In previous lecture we have saw this all topic. Now students, in today's lecture we are going to start with learn part and we are going to end with learn part also. So are you ready to learn the new topic? Very good. So kindly open your EVS combined book, page number 91. So let's start with a new topic. So students, in this learn part we are going to learn something new, something interesting, something which will give us information. So that is sound. In that we are going to see different sounds, different musical instruments, other sounds and musical instrument. So in this sound topic we are going to see on the 4 topic. So what is learn part? Learn part means where we are going to learn something new. learn part यानी जहाँ पे हम कुछ नया सीखने वाले, उसको ही हम learn part कहते हैं. जैसे प्ले पार्ट में हमने कुछ किया, डू पार्ट में हमने कुछ खुद से किया, तो अभी लर्न पार्ट में हम कुछ नया सीखने वाले हैं. So in that first topic is sounds. What is mean by sound? Sound यानी जहाँ से हमें सुनने के लिए आता है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, जहाँ से आवाज़ आती है, उसको ही हम साउंड कहते हैं. जैसे कोई पर्सन बात कर रहा है, यानी वो साउंड, वहाँ पे साउंड आ रहा है. जहाँ रोड पे बाइक्स जा रही है, ट्रक जा रहा है, कार जा रही है, यानी वो जो व्हीकल जा रहे हैं वो साउंड कर रहे हैं. फिर बर्ड्स का साउंड आता है, एनिमल का साउंड आता है. जब बर्ड्स उड़ रहे होते हैं और जब वो सॉन्ग आ रहे हैं तो चींची करते, तभी वो आवाज़ आती है, यानी वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हमारे हाथ से कोई भी बर्तन नीचे गिरता है तो वो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल बजा रहे तो वहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस आता है. तो यहाँ पे ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स है. अभी आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक पे पेज नंबर 91 पे उन्होंने लिखा है डिफरेंट साउंड्स, एनकरेज चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट साउंड्स. तो यहाँ पे अभी उन्होंने हमें 3 पिक्चर्स दी है, वो आपको मैं बताने वाली हूँ. उसमें से किस प्रकार का साउंड आता है वो अभी हम देखने वाले हैं. लिसन टू द साउंड ऑफ डेड पॉप्स ऑफ गुलमोहर, बबूल एंड ग्राउंडनट. तो यहाँ पे उन्होंने 3 पिक्चर्स दिए. फर्स्ट पिक्चर्स दिए वो है डेड पॉट्स ऑफ गुलमोहर. गुलमोहर ट्री का जो बड़ा वाला ऐसे डेड पॉट्स रहते, वो सूखा हुआ रहता है, अगर उसको आप क्रंच करोगे तो उससे आवाज़ आती है. तो वो ये पिक्चर है, गुलमोहर का डेड पॉट्स है. फिर सेकंड में बबूल का जो पेड़ है उसके ऊपर जो ऐसे लीव्स टाइप रहता है, ऐसे छोटा छोटा, उसको भी अगर आप क्रश करोगे तो उससे भी आवाज़ प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वो पिक्चर है. और थर्ड पिक्चर है ग्राउंडनट्स. शेंगदाना बोलते हैं हम उसको. शेंगदाना का जो पील है, जब हम निकलते हैं तब उससे भी आवाज़, साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये जो थिंग्स है, इससे हमें साउंड, ये जब हम क्रश या खोलते हैं या ओपन करते हैं, इससे साउंड प्रोड्यूस
होता है। अभी सेकेंड वन उसके नीचे, टेक स्टील और ग्लास वेसल, टैप द वेसल विथ स्पून, यू विल हियर वेरियस साउंड। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी क्या बोली है, आपको घर पे बर्तन लेना है और चम्मच लेनी है और वो चम्मच से बर्तन के ऊपर आपको ऐसे नॉक करना है। नॉक करने के बाद क्या होता है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, अलग अलग टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला है, आपको बाउल लेने के लिए बोले, स्टील का बाउल। स्टील का बाउल लेने के बाद अगर आप चम्मच से उसको नॉक करोगे, हिट करोगे, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर यहाँ पे उन्होंने ग्लास, जो ग्लास रहता है उसके ऊपर भी चम्मच से नॉक करने के लिए बोला है। अगर वो आप नॉक करोगे तो क्या होता है, आवाज़ प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे प्लेट दिया है, कप, ग्लास। तो ये जितने भी स्टील और ग्लास की चीज़ है, अगर इसको आप बजाओगे, इसको आप नॉक करोगे, तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ये एक्टिविटी आपको घर पे ट्राई करनी है। फिर थर्ड वन, टेक एन एम्प्टी टिफिन बॉक्स, पुट सम pebbles in it. Now hear the sound. Similarly, try with coins, pulses, grain, etc. Listen to the sound made by different material. तो यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आपको ना एक टिफिन बॉक्स लेना है, एक डब्बा लेना है। वो डब्बे के अंदर ना आपको क्या डालना है, कॉइन्स डालना है। 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का कॉइन्स डालना है। कॉइन्स डालने के बाद वो डब्बे को आपको बंद करना है और फिर वो डब्बे को आपको हिलाना है। हिलाने के बाद आपको क्या आवाज़ सुनाई देगा, वो कॉइन का आवाज़ सुनाई देगा। पर आपको कौन सा टिफिन बॉक्स लेना है, स्टील का। जिस स्टील के डब्बे में आपने कॉइन्स डाला है, वो हिलाने के बाद आपको साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देगा, वहाँ से आवाज़ आने के लिए चालू होता है। तो वो एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है स्टील के कॉइन से और वो स्टील के डब्बे से, टिफिन बॉक्स से। फिर उसमें उन्होंने बोला है वो कॉइन को निकालना है और उसके अंदर आपको पल्सेस, फ्रूट गेन्स डालना है। जो पल्सेस रहते हैं, चना बीना, वो आपको डालना है। उसको भी सेम प्रकार से आपको हिलाना है, तो फिर से आपको आवाज़ सुनाई देगी। उसके अंदर आप अगर पत्थर डाल के वो टिफिन को बंद करके फिर से हिलाएंगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये टिफिन बॉक्स में अगर आप कुछ डालोगे और हिलाओगे तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस सुनाई देता है। तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो ये एक्टिविटी भी आप अपने घरों पे ट्राई करने वाले हो। सो स्टूडेंट्स, I hope that you have understood about different types of sounds. Okay. Now students, in your EVS combined book on page number 92, they have given about different musical instrument. Different musical instrument यानी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे गिटार, तबला, ढोलक, फ्लूट, म्यूजिक, लेजिम। तो ये सब अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, वहाँ पे बोला है रिकॉग्नाइज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑप्शंस को आपको देखना है और नीचे उन्होंने पिक्चर्स दिए। तो जो प्रॉपर नेम है वो पिक्चर का, वो आपको वो पिक्चर के नीचे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू डू दिस एक्टिविटी? Very good. So let's start. First I will read all the options. Single string instrument, cymbals, halangi, tarpa, dholak, flute, bean, zadar, chimat. So let's start. So the first picture is of, very good, the first picture is of bean. B-E-E-N, bean. B-E-E-N, bean. B-E-E-N, bean. जो ज़्यादातर साधु लोग बजाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने ऐसे पिक्चर्स में देखा होगा तो जो नागों को नचाने के लिए जो बीन यूज़ कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है बीन। जो नागों को नचाने के लिए यूज़ की जाती है ये बीन है, B-E-E-N, बीन। सेकेंड वन इज कैम्बल्स, C-Y-M-B-A-L-S, कैम्बल्स, C-Y-M-B-A-L-S, कैम्बल्स, C-Y-M-B-A-L-S, कैम्बल्स। जो टेम्पल्स में, मंदिरों में
पूजा के टाइम पे वो बजाते हैं, दोनों हाथ में पकड़ के वो जो बजाते हैं उसको कैम्बल्स कहते हैं। जब पूजा रहती है तभी पूजा के टाइम जो हम गाना गाते हैं तभी वो जो बजाते हैं उसको हम कैम्बल्स कहते हैं। CYMBALS, कैम्बल्स। उसके बाद है हलगी। हलगी हलगी यानी जो डमरू टाइप ही रहता है और 2 स्टिक से बजाया हुआ जाता है। HALAGI, हलगी। HALAGI, हलगी। HALAGI, हलगी। फिर उसके बाद है तरापा। ये जो पुराने टाइम में जो राजा महाराज थे उनको वेलकम करने के लिए ये बजाया जाता था, वो है तरापा। TARAPA, तरापा। TARAPA, तरापा। TARAPA, तरापा। उसके बाद है चिमटा। चिमटा यानी वो एक क्लेजिम टाइप ही रहता है जिसको हाथों के सहारे से बजाते हैं, हाथों पे टैप करके बजाते हैं, हाथों के ऊपर टैप करके उसको बजाते हैं। चिमटा, CHIMTA, चिमटा। CHIMTA, चिमटा। CHIMTA, चिमटा। उसके बाद है ढोलक, जो ज़्यादातर मराठी लावनी में यूज़ किया जाता है। सॉन्ग जो मराठी लावनी रहती है उसमें ये ढोलक का यूज़ किया जाता है, ये ढोलक बजाया जाता है। DHOLAK, ढोलक। DHOLAK, ढोलक। DHOLAK, ढोलक। देन उसके बाद है फ्लूट, बांसुरी। फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। FLUTE, फ्लूट। FLUTE, फ्लूट, जो मुंह के सहारे से बजाई हुई जाती है उसको ही फ्लूट कहते हैं। FLUTE, फ्लूट। FLUTE, फ्लूट। उसके बाद है जिदर, SITHER, जो उसके ऊपर जो स्ट्रिंग रहती है वो अपने हाथों से हम बजाते हैं उसको ही जिदर कहते हैं। ZITHER। जो नवाब्स रहते थे वो जब गाना गाते थे तभी ये जिदर का यूज़ किया जाता है। ZITHER, जिदर। ZITHER, जिदर। ZITHER। उसके बाद है वेरी गुड, सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक ही स्ट्रिंग रहती है और वो स्ट्रिंग हिलाने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो उसको ही हम सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक ही स्ट्रिंग रहती है। सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। SINGLE, सिंगल। SINGLE, सिंगल। STRING, स्ट्रिंग। STRING, स्ट्रिंग। INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट, सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. So these are all types of musical instrument. First one was bean, second one was cymbals, third one was halagi, fourth one was tarapa, then chimta, dholak, flute, zither, single string instrument. Now students, on similar page below they have given us an activity where they have told us paper plate rattle. तो यहाँ पे आपको पेपर प्लेट रैटल बनानी, यानी जो छोटे बच्चों के हाथ में जो डमरू रहता है आपने देखा होगा सर्कल का रहता है, उसके साइड में थ्रेड रहती है और उसको छोटा छोटा बॉल छोटा रहता है और वो अब अगर आप हिलाओगे नीचे से तो वो बजता है डुम डुम डुम, तो इस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो आपको बनाना है, तो ये आप घर पे ट्राई करने, ये आपका होमवर्क है। तो आपको मटेरियल कौन सा चाहिए? पेपर प्लेट, बीड्स, रिबिन्स, स्टिक, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड ग्लू। तो ये मटेरियल्स आपको चाहिए और आपका स्टेप्स है डेकोरेट द प्लेट्स विद डेकोरेटिव मटेरियल। आपको वो जो प्लेट है वो डेकोरेट करना है। देन ग्लू द टॉप फेस एजेस ऑफ द पेपर प्लेट टुगेदर। फिर आपको वो पेपर प्लेट के एजेस को ग्लू लगा के चिपकाना है। पंच होल ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट। आपको दोनों साइड में से होल करना है। फिर टाई वन एंड ऑफ द रिबिन ऑन ईच साइड एंड बीड्स ऑन द अदर साइड। तो आपको वो रिबिन वो होल के अंदर टाई करनी है और हर एक रिबिन के एंड में आपको वो बॉल लगाना है। देन ग्लू द स्टिक टू द प्लेट फॉर हैंडल। आपको फिर ग्लू लगाना है और वेट फॉर इट टू ड्राई एंड देन यू मे ड्रम अवे एंड एन्जॉय द साउंड इट
मेक्स। फिर आपका जो ड्रम है वो रेडी हो जाएगा। फिर आप उसको बजाने के बाद वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सुनने के बाद आपको एंजॉय करना है। सो दिस यू विल ट्राई एट योर होम। सो दिस इज एन होमवर्क, स्मॉल होमवर्क. This activity you will try at home. Okay. Now students, on page number 93 they have given us an activity where they have told draw stick the picture of musical instrument you like to play. तो यहाँ पे उन्होंने आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है या तो आप उसको स्टिक कीजिए या तो आप ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है जो मेरे को पसंद है। तो मेरे को पसंद जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, वो है फ्लूट, ढोलक और लेजिम। तो मैंने यहाँ पे फ्लूट ड्रॉ किया है, ढोलक ड्रॉ किया है और लेजिम ड्रॉ की है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे नाम लिखा है। तो जो आपका पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप स्टिक कर सकते हो। सो दिस इज योर होमवर्क, यू विल कंप्लीट दिस। अभी उसके नीचे उन्होंने बोला है रिदमिक क्लैप। टीचर एंड स्टूडेंट्स विल sit face each other on a mat. The student will first watch the teacher's clap in different rhythm, pause for a moment between each set and count the clap around us. तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे आपको क्लैप करके वो साउंड प्रोड्यूस करना है। द स्टूडेंट विल नॉट बिगिन क्लैपिंग विद द टीचर फील्स द रिदम। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बजा के दिखाने वाली हूँ, आप ये आपके घर पे ट्राई करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेट वन में उन्होंने 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 1 2 1 2 कैसे करना है। सेट 2 में आपको कैसे करना है 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। सेट 3 में आपको कैसे करना है 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। सेट 4 में आपको 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एंड सेट 5 में 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। तो आपको इस प्रकार से क्लैप बजानी है। तो ये आप आपके घर पे ट्राई करने वाले हो। आपको खाली मैंने यहाँ पे एक डेमो दिखाया, आप ये सेट देख के आप अपने घर पे ट्राई करने वाले हो। तो ये 5 सेट आप फॉलो करके ये एक्टिविटी आपके घर पे आप ट्राई करने वाले हो। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 94 दे हैव गिवन अस अदर साउंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स दिए, वो पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करके नीचे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आस्क स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइटली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बैकग्राउंड साउंड। नाउ आस्क देम टू राइट द डिफरेंट साउंड्स दे हियर। यहाँ पे हर एक पिक्चर देख के जो साउंड आपको सुनाई देता है वो आपको वहाँ पे नीचे लिखना है। सो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, हॉर्स वॉक। जो हॉर्स चलता है उसका जो वॉक का साउंड है वो। तो यहाँ पे मैंने हॉर्स वॉक लिखा है। उसके बाद बफेलोस बेल साउंड, बफेलोस बेल साउंड। जो बफेलो है उसकी जो घंटी है, जब वो बफेलो चलते हैं वो घंटी का आवाज आता है। फिर थर्ड पिक्चर में ट्रक साउंड, ट्रक जब जा रहा है उसकी जो स्पीड है उसका साउंड। फोर्थ पिक्चर में जीप का साउंड, जो जीप जा रही उसकी जो साउंड आ रहा है वो। देन उसके बाद ऑटो रिक्शा का साउंड, देन बाइक साउंड, उसके बाद एलोप्लेन साउंड, देन ट्रैक्टर साउंड एंड लास्ट में ट्रेन साउंड। तो फर्स्ट पिक्चर में हॉर्स वॉकिंग साउंड, सेकंड पिक्चर में बफेलोस बेल साउंड, थर्ड पिक्चर में ट्रक साउंड, फोर्थ पिक्चर में जीप साउंड, फिफ्थ पिक्चर में ऑटो रिक्शा साउंड, सिक्स पिक्चर में बाइक साउंड, सेवन पिक्चर में एलोप्लेन साउंड, एट पिक्चर में ट्रैक्टर साउंड एंड नाइन पिक्चर में ट्रेन साउंड. So these are the sound made by different vehicles. So you will complete this in your EVS combined book on page number 94. Now students, on page number 95 they have given us an activity where they have told, that is musical instrument, they have told take up pictures of different musical instruments from newspaper, magazine and name and paste them in the space provided below. तो यहाँ पे आपको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पिक्चर आपको न्यूज़पेपर में या मैगजीन में मिल रहे हैं वो आपको कट करना है और यहाँ पे चिपकाना है. तो यहाँ पे मैंने 4 पिक्चर्स चिपकाई है जो मेरे को मिले हैं. सो फर्स्ट पिक्चर इज शहनाई, SHEHNAI. तो यहाँ पे मैंने शहनाई का पिक्चर स्टिक किया और उसके नीचे उसका नाम. सेकेंड पिक्चर इज ड्रम्स. तो यहाँ पे मैंने ड्रम का पिक्चर स्टिक किया और उसके नीचे उसका नाम DRUMS ड्रम्स. फिर थर्ड पिक्चर तबला, तबला का पिक्चर मैंने स्टिक किया और उसके नीचे उसका नाम TABLA तबला. और लास्ट में कैम्बल्स, कैम्बल का पिक्चर स्टिक किया और उसके नीचे उसका नाम CYMBALS कैम्बल. सो यू विल कंप्लीट दिस पेज नंबर 95 ऑफ योर EVS combined books.
So like this you will complete it. Now students, let us revise what we have learned in today's lecture. In today's lecture we have learned about sounds, where we have saw different sounds such as sounds of gulmohar, bubble, groundnut, then sounds of steel vessels and glass vessels, then sound of empty tiffin box. Then we have saw different musical instruments such as beans, flute, dholak, chimta, etc. Then we have done an activity where we have draw musical instruments such as flute, dholak, lazy. Then we have done an activity where we have done a rhythmic clapping. Then in next topic, that was other sound, we have recognized the various types of sounds such as horse walking sound, buffalo's bell sound, truck sound, jeep sound, auto rickshaw sound, bike sound, aeroplane sound, tractor sound and train sound. Then on page number 95 we have done an activity where we have stick pictures of musical instrument and we have wrote the name. So students, I hope you have understood today's lecture. Now students, it's a homework time. So the homework is, you will complete your EVS combined book page number 92, page number 93, page number 94 and page number 95. तो आप अपने EVS combined book का पेज नंबर 92, पेज नंबर 93, पेज नंबर 94 और पेज नंबर 95 कंप्लीट करने वाले. कंप्लीट करने के बाद ये पेजेस का आपको फोटो खींचना है और मुझे भेजना है. आफ्टर कंप्लीटिंग यू विल टेक द पिक ऑफ दिस पिक्चर्स page and you will send it to me. So I hope you have understood it. So students, thank you.